morning, church. Welcome you all to Sunday morning service. Hope you're having a good time. We're very glad to see you, and maybe soon we all may meet in one place and worship the Lord together. And so let's sing the song which says, "Yeshu Masih Bharosa Mera, Tu Hi Sahara Mera." Maybe you all can clap your hands from your homes and worship the Lord. God is really faithful, irrespective of what we go through in our lives. And He is same forever. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। It's all saying, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ प्रभु, मौत से है बचाया तूने, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। हाँ प्रभु, धन्यवाद। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज हम हाथ उठाकर गाएंगे,
यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। Yes, Lord Jesus. Here we are, Lord Jesus, down on our knees, Lord. We are surrendering everything, Lord Jesus. We are surrendering our lives, Lord Jesus. Here I am, Down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you. yes, Lord, we are desperate for you, Lord Jesus. Desperate for you. I surrender. I surrender. Yes, Lord Jesus. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. Drench my soul as mercy and grace flow. I hunger and thirst. I hunger and thirst. yes, Lord. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Yes, Lord. Speak to our hearts. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. I surrender. And I surrender. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. I surrender. Yes, Lord Jesus. Like a rushing wind, Lord Jesus. Bring to the hearts, Lord Jesus. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty star, stay within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty star, stay within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender.
surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. Yes, Lord Jesus, we want to surrender. We want to know you more, Lord Jesus. We want to know more closely, Lord Jesus. Holy Spirit, God, Lord Jesus. We want to have a personal connection with you, Lord Jesus. We want to have a relationship with you, Lord Jesus. Help us, Lord Jesus, to focus you, Lord Jesus, and to look only on you and to depend on you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. We submit into your hands. Amen. प्रभु धन्यवाद करते हैं इस दिन को। प्रभु आप महान परमेश्वर हो, आप महान हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आपने हमारे जीवनों में कार्य किया अद्भुत तरीके से प्रभु। प्रभु मदद करना इस गीतों को गाने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए खून को मेरे खुम्बा के पास लाकर करने की विनती करूं। छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु आराधना करूं। टूटे हुए खून को मेरे खुम्बा के पास लाकर करने की विनती करूं। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। हाँ प्रभु, मिट्टी से बनाया गया हूँ मैं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी को महिमा में बदल, तेरे महिमा को त्याग दिया। मिट्टी को महिमा में बदल, तेरे महिमा को त्याग दिया। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना,
यहूदियों के राजा को होसन्ना होसन्ना आने वाले राजा को। Good morning, church. गुड मॉर्निंग कलेसिया। Welcome to the Sunday morning service. रविवार के सभा में आपका स्वागत है। Thank you for joining us this morning. धन्यवाद आज के सुबह में हमसे जुड़ने के लिए। If you are watching us for the first time, यदि आप पहली बार देख रहे हैं, thank you for joining us. धन्यवाद जुड़ने के लिए। Please write your name and your contact number in the comment box कृपया अपना नाम और नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दें so that we can connect to you. ताकि हम आपसे जुड़ सकें। And please don't forget to subscribe to our channel. कृपया भूलें नहीं हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। Thank you once again. धन्यवाद एक बार फिर से। So today after service, like from 11 a.m. to 12 noon, आज सभा के बाद 11 से 12 बजे के बीच we will have a small program for children. एक छोटा सा बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा It गया will है happen on Zoom. जो जूम पे होएगा। So link has been shared to you on WhatsApp. लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया गया है। So if you have not received, then you can contact us. यदि आपने अभी तक नहीं पाया है लिंक तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। So it will be a fun time. ये बहुत अच्छा समय होएगा। There will be some quiz and games. कुछ क्विज और गेम रहेगा इसमें। And parents also have to participate with the children. माता पिता को भी बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करना है। So thank you. Please join us. कृपया जुड़ें। And this week from Monday to Friday we will have a conference. और इस हफ्ते में सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में कॉन्फ्रेंस होएगा। Timing is 7 to 9 p.m. समय 7 से 9 बजे के बीच में So we are होएगा। excited for that. हम उसके लिए बहुत प्रोत्साहित हैं And join us for that conference. और हमारे साथ उस कॉन्फ्रेंस के लिए जुड़िए। So our church office team will be watching this conference from our church office. और हमारा चर्च ऑफिस का जो टीम है वो चर्च ऑफिस से ये देखेगा। So you are welcome to join us. और आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के You लिए। will see here as a body of Christ. और हम यहाँ पे एक मसीह के देह के रूप में देखेंगे। And if you cannot come, यदि आप नहीं आ सकते हैं the link will be shared to you on WhatsApp. तो लिंक जो है उसका व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ You can watch from your home. और आप अपने घर से देख सकते हैं। So we will hear from our different preachers और हम अलग अलग प्रचारकों से सुनेंगे and pray that there should be an anointing in the messages. और प्रार्थना करिए कि मैसेजेस में अभिषेक हो। And on Saturday we will be having ladies time. और शनिवार को महिलाओं का समय होएगा। And men's time come volleyball time. मेंस टाइम जो होता था उसके जगह पे वॉलीबॉल है। And that's all for the announcement. सूचना यही। And for offering, you can see the details on the screen. और भेंट के लिए डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है You can put your offering in the account, और उस ऑफरिंग को आप उस अकाउंट में डाल सकते हैं। or you can come to our church office and give your offering in cash. और या फिर आप चर्च ऑफिस आके अपना ऑफरिंग दे सकते हैं कैश में। From Tuesday to Saturday between 12 to 5 p.m. मंगलवार से लेकर शनिवार के बीच में दोपहर 12 बजे से 5 बजे के बीच में। And if you have any prayer request, यदि आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है please contact us on the number displayed on the screen. तो उस जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। And that's all for the announcement. सूचना यहीं तक है। Let's pray for the offering and the coming message. आइए प्रार्थना करते हैं ऑफरिंग और आने वाले संदेश के लिए। Father, we Lord, thank you, Father Lord. धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। Thank you for this wonderful day, Lord. धन्यवाद आज के अद्भुत समय के लिए। Lord, every day, each day, Lord, you have made, Lord. हर एक दिन प्रभु आपने बनाया है। And Lord, help us, Lord, to rejoice in that, Lord. सहायता करो प्रभु कि हम उसमें आनंदित हों। This morning, Lord, इस सुबह में it is a प्रभु new Sunday, Lord. एक नया रविवार है। And we expect from you, Lord. हमें आपसे आशा है प्रभु। You speak to us, Lord. आप हमसे बातें करो प्रभु। We also pray for the children program that is going to happen, Lord. प्रभु हम उस चिल्ड्रन प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करते हैं जो होने वाला है। Let it be exciting program, Lord. वो बहुत प्रोत्साहन का प्रोग्राम हो प्रभु। I pray for all the children, Lord. हम हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते Help हैं them, Lord, to enjoy this program, Lord. ताकि वो इस कार्यक्रम में प्रोत्साहित हो We सके। also pray for the conference, Lord. आने वाले कॉन्फ्रेंस के लिए भी प्रार्थना करते हैं You प्रभु। prepare us, Lord. आप हमें तैयार करो।
so that we can hear from you, Lord. ताकि हम आपसे सुन सकें। And we also pray for the offering, Lord. और आज के भेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं We प्रभु। pray for each and every member of our church, Lord. हम हमारे चर्च के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं। You help them, Lord. आप उन्हें सहायता करो You प्रभु। know their needs, Lord. आप उनकी ज़रूरतों को जानते हो प्रभु। So you fulfill their needs, Lord. आप पूरा करो उनकी ज़रूरतों को। Help them, Lord, that they should give to your kingdom, Lord. हेल्प सहायता करो प्रभु कि वो आपके राज्य को दें। We also pray for the coming message. हम आने वाले मैसेज के लिए प्रार्थना We करते give हैं। them the message, Lord. हम आपके हाथ में वो संदेश को देते हैं प्रभु। You prepare our heart, Lord, to hear from you. आप हमारे हृदय को तैयार करो पिता कि हम आपसे सुन सकें। Help us, Lord, to give attention to that message, Lord, सहायता करो कि हम उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें उस संदेश में पिता and hear from you, Lord. और आपसे सुन सकें। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन
जीवन नया दिलाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। So exercise yourself toward godliness. और अपने आप को परमेश्वर के काम में जैसे बनाए रख, Exercise. काम में लगा रहना। The word exercise in Greek is gymnaso, whatever. और ग्रीक भाषा में जो एक्सरसाइज, ये काम करने के लिए जो शब्द है वो जिम्नासो है। So what is today's word? Anybody? तो आपको पता Gymnasium. है कि जिम्नेशियम जहाँ पे So Paul is saying that कवायद, like कसरत करते हैं। like gymnasium, like for the godliness. और परमेश्वर ईश्वरीयता के लिए ऐसे जिम्नेशियम करो। If you go to Coppercane, like a lot of gymnasium, isn't it? और कोपरखाने में जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह है, But there is a gymnasium for godliness. लेकिन ईश्वरीयता के लिए भी ऐसा जिम्नेशियम है। And the next verse says, अगला वचन कहता है, bodily exercise profits a little. क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता How है। many do exercise here? कितने लोग ऐसे एक्सरसाइज करते हैं? All are fit and no need. हम सब एकदम तंदुरुस्त है। Does bodily exercise profits? क्या देह की ऐसे एक्सरसाइज करके लाभ होता है? Profits? Yeah, it profits. हाँ, उसका लाभ है। Yeah. We all do exercise in sleeping. हम नींद में एक्सरसाइज करते हैं, We dream, सपने देखते। right? Tomorrow I will do. कल मैं करूँगा, But tomorrow never comes. और कल कभी नहीं आता है। When tomorrow comes, we say next day. फिर जब कल आता है हम बोलेंगे कल करेंगे। Like bodily exercise, it profits. और देह के साधना से लाभ होता है, It profits a little. थोड़ा सा लाभ होता है। But godliness is profitable for all things. लेकिन भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। Say that word in Hindi. सब लोग बोलेंगे? पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। Okay, वो बीच वाले लाइन कोई बोला नहीं, बबलू के लाइन है ना? बोलिए, what is that written? क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। अरे उधर भी सा Yeah, I didn't know that. Okay. So, godliness is profitable. भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। बोलिए, भक्ति सब लाभदायक है। सब बातों के लिए लाभदायक। Yeah. So I'm not like we are not we are not saying that okay, exercise is bad. हम ये नहीं कह रहे कि देह की कसरत करना का बुरी बात है, We should do it. हमें करनी चाहिए। Dr. Stevens used to do it. डॉक्टर स्टीवंस करते थे, So he was very fit. और वो बहुत ही तंदुरुस्त थे। But godliness is profitable लेकिन भक्ति भी लाभदायक है for all things, हर बातों के लिए, having the promise of the life that now is and which is to come. क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। So how to try exercise for godliness? तो किस तरह से हम इस भक्ति के लिए ऐसी कवायद कसरत करें, Isn't it like what is godliness? और भक्ति क्या है? Yesterday we said about a child is coming from the school. और कल हमने कहा था कि एक बच्चा पाठशाला से घर आता है, Then he has to learn the guitar. और ज़बरदस्ती करके हम उसे गिटार सिखा रहे हैं, And the child is looking through the window and saying that children are playing. और वो बच्चा है खिड़की से बाहर देखता है कि बच्चे खेल रहे हैं, And he's very sad. बहुत दुखी हो Because he जाता has है to go for the guitar or the क्योंकि उसको वो गिटार सीखनी है, train. It is very like boring for him to. और उसके लिए वो सीखना बहुत ही आलस, But imagine for अच्छा a minute, नहीं है, खुशी नहीं है। an angel came and took him to a big, large, packed auditorium.
और उसी क्षण में आप सोचिए अगर एक स्वर्गदूत आता है और उसे एक बड़ी जगह पर लेके जाता है, बड़ी सभा है, लोगों से भरे हुए, fluently, very और वहाँ पे skillfully, एक आदमी है जो बहुत अच्छे से गिटार बजा रहा है। like Ravi and Nitin, no? Like रवि they're और नितिन जिस तरह से बजाते हैं, they're playing that he's playing and he's like people are like enjoying. और लोग उसका मजा ले रहे हैं, And after a आनंद while ले the रहे हैं। angel asked, you know, to that boy, और कुछ समय के बाद वो स्वर्गदूत अगर वो You know बच्चे से that? Who is पूछा that? कि तुम्हें पता है कौन है जो बजा रहा है, he said, no, some famous person. और वो बच्चा कहेगा कि नहीं पता, बहुत ही जाना माना And the angel वादक said, है। no, that is you are the one. और अगर स्वर्गदूत कहे कि तुम हो वो, Now this perspective change. अब उसका दृष्टिकोण बदल Now his जाएगा, training has a meaning. क्योंकि उसके अभी उस कसरत करने में कुछ मतलब Now his है, training has a purpose. अभी उसके जो काम करने में कुछ उद्देश्य है। That's what our life. और हमारा जीवन भी ऐसा ही है Exercising ourselves कि हमारे लिए ये कसरत करना to godliness. भक्ति के The लिए। word godliness means भक्ति का मतलब है Christ likeness. यीशु मसीह के जैसे होना। Angel is saying, you know that? Who is that? और स्वर्गदूत कहते हैं पता है आप वो कौन है? It's Jesus Christ. आप कहोगे यीशु मसीह है। He said that that is you. अगर वो कहे कि ये तुम ही हो, That is you. तुम ही हो। That's what God is doing. और in our परमेश्वर lives. यही कर रहा है हमारे God जीवन does में। 3 things with us to परमेश्वर make us to be like Christ. और परमेश्वर हमारे जीवन में 3 चीजें करता है कि हम यीशु मसीह के जैसे बने, Because we all have some kind of rough edges in our life, क्योंकि हमारे जीवन में भी खुरदरे हिस्से हैं। right? Like that person work the masonry, he cuts the stone, right? He just to chisel it out, certain portions of the stone. और जो मेसन रहता है वो ना? भी वो पत्थर के अलग अलग हिस्सों को काटता है, Right, because it has to fit properly. क्योंकि उसको अच्छी तरह से वहाँ God पे does जमाना with है। us. और परमेश्वर भी वही We करता are है। saved, हम विश्व उद्धार but में we हैं, have some kind of rough edges. लेकिन हमारे जीवन में कुछ खुरदरे हिस्से God हैं। is making us like Christ. और परमेश्वर हमें यीशु के जैसे बना रहा है। One, पहली चीज he uses वो इस्तेमाल करता है people. लोगों का, He uses people. लोगों का इस्तेमाल करता है। How many believe that? कितने लोग इस पर विश्वास करते God हैं? uses people कि to making us to conform to the image of परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल करता है हमें यीशु जैसा बनाने के लिए। husband, पति, wife, पत्नी, parents, माता पिता, right? All these things work. और Even ये friends. सारी चीजें, ये दोस्त भी, ये सारी The चीजें काम enemies. करती है, हमारे शत्रु। Why God allows these things? और परमेश्वर क्यों इन चीजों को आने देता है? What is the purpose? उसका उद्देश्य क्या है? What is the purpose? उसका उद्देश्य क्या है? बोलिए. यीशु मसीह के, To be like Christ. यीशु मसीह के जैसे बनाना। We say God is painful, isn't it? और हम कहेंगे कि परमेश्वर बहुत दर्द हो रहा है, God, like he's just to chiseling out. और जैसे कि हमको वो घिस रहा है, That's what he does. और वो ऐसे ही करता है। Because that, in order to become that like Christ, और हमें यीशु मसीह के जैसे बनाने के लिए he does that. वो ऐसे करता है। Proverbs 27:17. और नीति वचन 27:17 Somebody can read it. कोई पढ़ सकते हैं? थोड़ा जोर से बोलना. नीति वचन 27:17 Can you read it? Somebody can read it. लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्रों की संगति से चमकदार हो जाता है। Well, anybody can explain what is the meaning of that? I don't know. कोई इसका मतलब मुझे समझा सकता है, मुझे नहीं पता है इसका क्या मतलब है। लोहा को, हाँ? Okay. So the people make others, right? तो लोग दूसरों को ऐसे कर देते हैं। That's what like we need a faithful friends. इसलिए हमें विश्वासी दोस्तों की जरूरत है। Isn't it like a Proverbs 27? Today's 27, isn't it? 27. He says, नीति वचन आज 27 तारीख भी है। he says that faithful are the wounds of the friend than the kisses of enemy. और यहाँ पे ये भी लिखा है कि
वो विश्वास योग्य है, वो जख्म एक सच्चे दोस्त के बजाय उस झूठे दोस्त के जो हमें चुंबन करता है। कौन सा चाहिए चेहरे में? क्या चाहिए आपको चेहरे पत्थर पर? ना मार के लाल चाहिए, वो किसस का लाल चाहिए, राइट? Paul says that the writer says that kisses of the enemy is deceitful. और वो कहता है कि जो शत्रु है उसके जो चुंबन है वो फंसाने वाले हैं। But the faithful are the wounds of the faith. What is that he say? Faithful are the wounds of the friend. लेकिन एक दोस्त के जो जख्म है वो बहुत विश्वास योग्य है। Faithful are the wounds of the friend, but the kisses of the enemy are deceitful. लेकिन शत्रु के चुंबन फंसाने That's वाले why हैं। we learning in the Bible. We are learning the Bible in the church. और यही हम बाइबल में और कलीसिया में सीखते Sometimes हैं। it's very hard to digest. कई बार उसको हजम करना कठिन होता है। But because it is important, because we are becoming like Christ. क्योंकि हम यीशु के जैसे बन रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग सभी को। Good morning, everyone. जय मसीह। Praise God. सो हम धन्यवाद करते हैं आप सभी के लिए, We thank you all. और इस रविवार की सुबह में आप सभी का स्वागत है। Welcome to the Sunday morning service. और हम प्रार्थना करते हैं, है ना, वचन शुरू करने से पहले। Before we start, let's pray. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए लॉर्ड। Gracious Heavenly Father, we thank you for this day, Lord. आपको महिमा प्रशंसा देते हैं पिता। We praise you and glorify you, Lord. खासकर हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में प्रभु हमसे बातें कीजिए। Especially we pray that, Lord, you speak to us today. पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। Lead us according to your Spirit, Lord. आपके वचन के द्वारा हम सबसे बातें भी कीजिए। Speak us through your words, Lord. प्रभु जी, आज इस संदेश और ये वचनों को प्रभु अनॉइंट कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा। Anoint these words, Lord, in Holy Spirit, Lord. और जो भी हम सब सुन रहे हैं प्रभु, हम सबसे बातें कीजिए Speak to us and all who are hearing this आपके पवित्र आत्मा के द्वारा। in your Holy Spirit. प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, We thank you, Lord. सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं। We आमीन। honor you, glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. सो इफिसियों के अध्याय 1 से पंक्ति है, वचन नंबर 5। Ephesians 1:5, और वहाँ यहाँ पे इस तरह से कहता है, and it says, उसने हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले हिस्से अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा लेपालक पुत्र होने के लिए ठहराया। having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to good pleasures of his will. वचन नंबर 7 में, In 7th verse, वचन नंबर 11 में, in 11, उसी में जो अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार सब कुछ करता है, हमने भी उसके अभिप्राय के अनुसार पहले से ठहराए जाकर उत्तराधिकारी प्राप्त किया। in whom also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. सो यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा के बारे में हिस्सा है, And this is a part of God's will, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में भी कुछ हिस्सा है। and there's a part in God's part. तो यहाँ पे पौलुस ने क्या कहा कि परमेश्वर अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार। And here Paul says that in God's will, सो पहले हिस्से में कहा कि अपने भले इच्छा के अभिप्राय के अनुसार पहले से वो उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लेपालक पुत्र होने के लिए ठहराया। in first part he says, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself. लेकिन उसमें एक मकसद है, But there's a purpose in this. परमेश्वर की इच्छा में एक मकसद है। There's a purpose in God's will. और एक शब्द आता है कि चुनाव करना। And there's a word which says choose. तो यहाँ पे एक जैसे ठहराया शब्द है, And here it says he has kept us. लेकिन ये एक शब्द है कि चुनाव करता है परमेश्वर, हमको चुनता है परमेश्वर। But then there's another word which says choose. और वचन नंबर 4 में लिखा है, एक इफिसियों 1:4 में, And Ephesians 1:4 says, कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया। just as he chose us in him before the foundation of the world. है ना, कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमको चुन लिया है। He chose us before the foundation of the world. सो चुनाव हमारे कार्यों पे आधारित नहीं है, And choosing of God doesn't depend on our works.
रोमियो का अध्याय 9 वचन नंबर 11-12 में, Romans 11 says, 9 अध्याय वचन नंबर 11 12 9:11-12 says, 9-11 इस तरह से कहता है, 9:11 says, यद्यपि जब तक ना तो जुड़वा जन्मे थे और ना कुछ भला बुरा किया था, इस अभिप्राय से कि परमेश्वर द्वारा चुनने का उद्देश्य कर्म के कारण नहीं वरन बुलाने वाले के कारण स्थिर रहे। For the children not yet being born, nor having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand not of works, but of him who calls. वचन नंबर 12 में, In verse 12, उससे यह कहा गया था, ज्येष्ठ पुत्र छोटे की सेवा करेगा, जैसे लिखा है, याकूब से मैंने प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। it was said to her, the older shall serve the younger, as it is written, Jacob I have loved, but Esau I have hated. सो यहाँ पे है ना उत्पत्ति का अध्याय 25 का स्टोरी है। And here there's a story of Genesis 25. है ना, रिबेका को जुड़वा बच्चे थे, Rebecca got twins children. लेकिन यहाँ पे जन्म होने से पहले कुछ चीजें गॉड कह रहा है। But before the birth of babies, God says something. और पौलुस यहाँ पे बता रहा है उस हिस्से को, And Paul is saying the same thing here. कि परमेश्वर जब चुनाव करता है तो उस चुनाव में कुछ बताना चाह रहा है। It says that when God wants to choose something, he says something. कि चुनाव जो है उसका जो चुनाव का जो उद्देश्य है कर्म के कारण नहीं है। The purpose of God's choice is not depending on our works. जैसे चुनाव का उद्देश्य कर्म के कारण नहीं है, As the choice of God doesn't depend on our works, वैसे ही सेम परमेश्वर की इच्छा में भी वैसा ही हिस्सा है। the same thing we see in God's will. तो परमेश्वर भी अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार हमको क्या करता है, चुनाव करता है। So God also chooses us with his own will. और हमारे लाइफ में एक बहुत खास मकसद होता है। And we have a special purpose of him. और परमेश्वर की इच्छा यही है कि हमारे लाइफ में एक खास मकसद है। And God also wants this, that we have a special purpose. जिस प्रकार से चुनाव में हमें भले कार्य के अनुसार नहीं चुनाव करता परमेश्वर, As God doesn't chooses us with our good wills, लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि वरन बुलाने वाले के कारण स्थिर रहे। but we shall stay firm according to the one who called us. है ना, हमें जो बुलाने वाला है उस पे स्थिर उस पे निर्भर है। The one who calls us, we should stay still in him. और जैसे पौलुस ने कहा कि जगत की उत्पत्ति से पूर्व, As Paul says, before the foundation of the earth. सो पौलुस इस चीज को बताना चाह रहा है यहाँ पे। And Paul wants to say these things in here. यस, हमें पता भी है कि हमारा जो चुनाव हुआ हमारे आधार पे नहीं हुआ। As we know that our being chosen is not depending on us, ना कि हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा चुनाव किया परमेश्वर ने, nor to our good works, लेकिन एक जो परमेश्वर की इच्छा जो है वो मुख्य हिस्सा है। but the important thing is God's will. परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक किसी भी व्यक्ति का नाश ना हो। God wills that no one shall perish. परमेश्वर चाहता है कि हर कोई उद्धार पाए। God wants that each and every one shall receive salvation. लेकिन क्या हर कोई उद्धार ग्रहण करता है? But is everyone receiving salvation? यस, कई बार होता है कि हर कोई जब सुसमाचार को स्वीकार नहीं करता। Yes, it happens that each and everyone doesn't receive the gospel. और आप और हमको पता है वो चीजें। And you and us know these things. जब सुसमाचार सुनाते हैं तो कई लोग स्वीकार करते हैं, कई लोग इनकार करते हैं। When we share gospel, some accept it, some reject it. यदि आप परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो बहुत कुछ लोग स्वीकार करेंगे, कुछ लोग इनकार करेंगे। When we speak about God, sometimes they accept us, sometimes they reject us. सो क्या उसमें परमेश्वर का चुनाव और परमेश्वर की इच्छा को हम उसको क्या कर सकते हैं कि क्या हम उसको साइड में रख दें? So does it mean that we should keep away God's choosingness? सो ऐसा नहीं है। So this is not the way. लेकिन हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति विश्वास में आए। God wants that each and every person shall receive salvation. लेकिन ऐसा नहीं होता है। But this doesn't happen. उसमें परमेश्वर की इच्छा शामिल है।
Here God's will is involved. क्योंकि परमेश्वर इस वचन में कहा है कि जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा रोमियो का 9:13 में, As it says in Romans 9:13, याकूब से मैंने प्रेम किया और एसाव को आप प्रिय जाना। Jacob I loved, but Esau I have hated. और वचन नंबर 15 में भी कहता है And same says in verse 15, कि मैं जिस पर चाहूँ उसी पर दया करूँगा और जिस पर चाहूँ उस पर तरस खाऊँगा। I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I have compassion. सो दया करना और तरस खाना परमेश्वर पर डिपेंड है। And to have mercy or to have compassion depends on और God. सेम जो चुनाव परमेश्वर करता है वो चुनाव परमेश्वर पर डिपेंड है। And same way, what God chooses is depending on Him. सो परमेश्वर ने मनुष्य को एक स्वेच्छा दिया है So God has given us a free will, और उस स्वेच्छा के अनुसार मनुष्य परमेश्वर के उस चुनाव के प्रोसेस में भाग ले सकता है। and because of this, person can take part in God's will. और वो अपने उस चीज़ को उस चुनाव में जब भाग लेना मीन्स कैसा कि जब वो जैसे ही अपने स्वेच्छा को इस्तेमाल करता है As he uses his own free will, और वो परमेश्वर के उस साल्वेशन को उद्धार को स्वीकार करता है and then he receives God's salvation, और परमेश्वर की इच्छा को जानने लग जाता है। and then he knows God's will. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर की इच्छा को संपूर्ण रूप से नहीं समझ पाता है कोई भी। Many a times it happens that the person doesn't understand God's will fully. लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं But as we go ahead, परमेश्वर की इच्छा को हम समझने लग जाते हैं। we understand God's will. सो अध्याय 1 और वचन नंबर 5 के अनुसार, जो इफिसियों का अध्याय 1:5 के अनुसार, If according to Ephesians 1:5, सो वहाँ पे जो चुनाव है the choice here, और वहाँ पे चुनाव परमेश्वर कैसे कर रहा है and how is God choosing here? और हम देखते हैं कि उसकी इच्छा है वहाँ पे। We see here that God is having His will here. सो परमेश्वर की इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। So God's will is important. सो परमेश्वर की इच्छा कैसे कि परमेश्वर की खुशी भी है उसमें। So as God is willing, He is also happy, and there's God's happiness in here. जब मनुष्य को परमेश्वर चुनाव करता है When God chooses any person, तो उसमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। it happens according to God's will. और पॉइंट नंबर 2 में कि परमेश्वर की खुशी उसमें होती है। And second point is that God is happy in that. और पॉइंट नंबर 3 में परमेश्वर अनुग्रह पे आधारित है, उसका जो चुनाव हो परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित है। And point number 3 says that God's will is dependent on grace. है ना, वो इफिसियों का अध्याय 1, 6 और 7 में, Ephesians 1, 6 and 7. और पॉइंट नंबर 4 में, And in point 4, परमेश्वर का प्लान है उसमें। God has His plan. 1 अध्याय वचन नंबर 11 में, Ephesians 1:11. और पॉइंट नंबर 5 में, In point 5, परमेश्वर का उद्देश्य एक मकसद है। God has a plan and a purpose. 1 अध्याय वचन नंबर 11 में। Chapter 1 verse 11. सो मनुष्यों ने परमेश्वर को पसंद क्या कह सकते हैं कि इस तरह से मनुष्यों ने परमेश्वर की पसंद को कुछ भी क्या कर सकता है, अलग नहीं कर सकता है। A person or a man cannot separate God's will. सो परमेश्वर की इच्छा को अगर कोई भी व्यक्ति चाहे कि अलग कर सके तो नहीं अलग कर सकता है। If a man wishes or he wants to separate God's will, he can't. और शैतान, हम जानते हैं और देखते भी हैं कि शैतान बहुत सारे समय में वो चीज़ों को करना चाहता है। And many a time Satan wants to do those things through us. है ना, कि उसने पिता और पुत्र के बीच में जो उस रिलेशन को अलग करना चाहा। He wished to separate the father and the son. यस, थोड़े समय के लिए वो संबंध टूट गया। Yes, for some time they were broken क्योंकि हमारे पाप की वजह से, because of our sin. लेकिन फिर से वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ But still it didn't get any success उस संबंध को तोड़ने के लिए, to break that relation, उसको अलग करने के लिए। to separate that relation. लेकिन आज भी शैतान की इच्छा यही है कि एक विश्वासी का जो जीवन है परमेश्वर के साथ, वो चाहता है कि परमेश्वर के साथ जुड़ा ना रहे। And Satan still wishes that a believer should not be joined
joined to Christ but must be separated. है ना। शैतान की योजना क्या है What is Satan's plan? कि उद्धार तो ग्रहण कर लिया है लेकिन परमेश्वर की इच्छा को न जान सके। That he should receive salvation but should not know God's will. है ना, वो चाहता है कि उद्धार तो ग्रहण कर लिया, ठीक है यहाँ तक, That that a person receives salvation, but this is only the thing. कि आगे का हिस्सा जो है कि परमेश्वर की इच्छा को न जान सके वो, That he should not go ahead and should know God's will. और उस इच्छा में ऑपरेट न कर सके। And he should not operate according to God's will. लेकिन परमेश्वर की इच्छा में ऑपरेट करना बहुत ही अच्छा है एक विश्वासी के लिए। But it is good for a believer to walk according to God's will. है ना। सो डॉक्टर स्टीवन के बुक में इच्छा के बारे में, परमेश्वर की इच्छा के बारे में बहुत सारे अच्छे हिस्सा है। And in Dr. Stephen's booklet there are many good things about God's will. है ना। पहला इच्छा है कि परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा। First it says God's full will. परफेक्ट विल। Perfect will. है ना। तो उस पर संपूर्ण इच्छा में परमेश्वर बहुत सारा अच्छा चीजें रखा है विश्वासियों के लिए। And in perfect will God has kept many good things for us. कि परमेश्वर के पास एक संपूर्ण परफेक्ट प्लान है। That God has a full and a perfect plan. कि एक विश्वासी के लिए वो उसके स्वरूप में बदलता जाए। For a believer that he might change in him. और वचन को लेकर, पवित्र आत्मा के वचन को लेकर आगे बढ़े और डिपेंड रहे। And to take God's word and to go ahead and depend on God. पवित्र आत्मा के द्वारा और विश्वास के द्वारा According to Holy Spirit and through salvation. वो आगे बढ़े। He should go ahead. ये परमेश्वर की योजना है। This is God's plan. और परमेश्वर की संपूर्ण योजना ये है कि हर एक विश्वासी एक राइट टीचर, पास्टर के अंडर में अधीन रहे। And God's plan is that each and every believer must submit to his pastor. परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा यह भी है कि वो अपने स्थानीय कलीसिया में बना भी रहे। God's will also says that he should be submitted to his church. है ना, स्थानीय कलीसिया में। Church. यस। सो और दूसरा इच्छा यह है कि ऑपरेशनल विल ऑफ गॉड। And second will says operation will of God. तो इस में भी परमेश्वर के एक खास मकसद है। And there is a special purpose of God. और तीसरा ये है जियोग्राफिकल विल। And the third is geographical will. सो यहाँ पे ये हिस्सा में कई बार ऐसा होता है कि एक विश्वासी नहीं समझ पाता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे लाइफ में। And in this there sometimes happens that a believer does not understand God's will. कि जियोग्राफिकल जो विल है, जो भौगोलिक विल कहते हैं, इसको इच्छा कहते हैं। And it is known as geographical will. सो हम उसमें देखते हैं कि बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है। And we see in the Bible there are many examples. अब्राहम को गॉड ने बुलाया। God called Abraham. अब्राहम को गॉड ने कहा कि अब्राहम तू उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। God says to Abraham to go to the city where he says. जब अब्राहम आगे बढ़ा, उस देश को छोड़ा, उस जगह को छोड़ा और आगे बढ़ा, तब वो परमेश्वर की इच्छा को जान पाया। When Abraham went ahead and when he left his city, that time he came to know God's will. है ना। और यूसुफ के बारे में हम जब देखते हैं, And when we see about Joseph, यूसुफ जेल में था। Joseph was in jail. एक तरह से देखा जाए, अगर इंसानी ह्यूमन सोच से अगर सोचा जाए, So as we think according to a human tendency, तो ये सोचा जाए कि जेल में रहना क्या ये परमेश्वर की इच्छा हो सकती है? that staying in a prison doesn't mean that I'm in God's will. है ना, कि जेल में होना क्या परमेश्वर की भौगोलिक इच्छा का हिस्सा है? Is it a part of God's geographical will? यस, परमेश्वर की इच्छा है वहाँ पे। Yes, there is God's will there. और हम देखते हैं कि उस परमेश्वर की एक भौगोलिक इच्छा थी, इसलिए परमेश्वर ने वहाँ पे उसको रखा। There was God's geographical will, that's why he was there. और उसके आगे हम देखते हैं कि यूसुफ प्राइम मिनिस्टर बना मिस्र का। And then we see that Joseph becomes prime minister of Egypt. सो क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने? Then does it mean that God doesn't wish for Joseph to become a prime minister of Egypt? यस, परमेश्वर की इच्छा थी। Yes, God's will was there. इसलिए उसके लाइफ में वो चीजें हुई। That's why all these things happened in his life. गड्ढे में डाला गया। He was put into the pit.
और उसको सताया भी गया, he was troubled, ठट्ठा उड़ाया गया, he was blasphemed, और यहाँ तक कि उसको बेच दिया गया। he was sold. और उसमें भी एक हिस्सा ये है कि परमेश्वर की इच्छा है उसके लाइफ में, And here also there is God's will. है ना। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे लाइफ में ऐसे हालातें आ जाती है तो उन हालातों में ऐसा लगता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। And there are some circumstances in our life where we think that is there God's will here. है ना। फ्राइडे को पास्टर शिवेली कुछ अद्भुत हिस्सा कह रहे थे। And Friday, Pastor Shivali spoke something good. वो इस तरह से कह रहे थे कि जब हमारी गलत हालातें होती हमारे जीवन में, When there are some wrong circumstances in our life, बहुत सारी तकलीफें होती है, there are some troubles in our life, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारी ओर होता है, then too God is towards us. हमारे लिए होता है वो He परमेश्वर। is for us. सो जब हमारे लाइफ में गड़बड़ चलती रही होती है फिर भी परमेश्वर की इच्छा हमारे लाइफ में होती है। When there is chaos in our life, still God's will is there with us. सो सम टाइम ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों चल रहा है, Sometimes we think that why is this happening? लेकिन उसमें बने रहिए। But in that you stay still. परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना एक भले अभिप्राय के लिए है, And God's will and God's purpose is for good. और जो चौथा इच्छा है वो है परमिसिव विल बोलते हैं। And the fourth will says the permissive will. परमेश्वर की जो प्रदान की गई इच्छा, And the will which is from God. है ना। तो ये क्या है कि कई बार मनुष्य अपने इच्छा के अनुसार वो निर्णय लेता है, वो चीज़ें करता है जो परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है। And sometimes a man takes some decisions which is not according to God's will. और वो क्या होता है कि उसकी वजह से परमेश्वर जिद करता है मनुष्य, लेकिन परमेश्वर कई बार होता है कि उसको अलाउ कर देता है। And sometimes God allows to take those decisions. है ना। तो पास्टर शिवेली उस दिन एक अच्छा और भी सेंटेंस कह रहे थे And Pastor Shivali spoke some good sentences. कि हम जो करते हैं उसके विरुद्ध में परमेश्वर है, लेकिन हमारे विरुद्ध में परमेश्वर नहीं है। God is opposite to the doings which we do, but not opposite to us. क्या परमेश्वर की इच्छा है कि एक मसीही पाप में जिए? That is it God's will to live for a believer to live in sin? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि मसीही जो लोग हैं वे विचार में जिए? Is it God's will for a Christian to live in adultery? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि मसीही लोग दूसरे मसीही के साथ जलन के साथ संबंध में जिए? Is it God's will for a Christian that he should live in a jealous against another believer? क्या एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ नफरत से रहें? Is it God's will for a believer to have hatred for another one? नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। No, this is not God's will. ये मनुष्य करता है, लेकिन इसके विरुद्ध में परमेश्वर होता है। This is done by human beings, but God is opposite to this. लेकिन परमेश्वर मनुष्य के विरुद्ध नहीं होता है। But God is not opposite to a human being. इसलिए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने अपने भले अभिप्राय के अनुसार चुनाव किया है। God has done with goodness the choosing of us. है ना। और हम याकूब के लाइफ में देखते हैं अद्भुत हिस्सा। We see amazing things in Joseph. है ना। उससे जब दोनों का जन्म नहीं हुआ था तो रेबिका के कोख में दोनों फाइट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। When they both weren't born, they were fighting in Rebecca's womb. लेकिन फिर भी गॉड ने चुनाव कर लिया। But still God chose them. है ना। कोई व्यक्ति कह सकता है अरे उनका लाइफ तो अच्छा नहीं था, कैसे गॉड ने चुनाव कर लिया? Any person can say that their life wasn't good. How can God choose them? और उसके लाइफ जब मतलब इस पृथ्वी पे जीवन, तब भी हम उसके लाइफ को देखते हैं। And when they were on this earth, we see their lives. सबसे धोखा देने वाला व्यक्ति याकूब था। The one who deceived persons. और गॉड ने उसी को चुना। And God chose him only. है ना। यही चीजें बताते हैं कि मनुष्य की अच्छाई पर परमेश्वर चुनाव नहीं करता है। This only shows that God's choice is not depending on our works. गॉड अपने इच्छा के अनुसार चुनाव करता है। God chooses us according to His will. है ना। गॉड ने उसको चुनाव किया। God chose him. और गॉड ने वो सही जगह पे रखा उसको। And God kept him at correct place. और उसके द्वारा हम देखते हैं कि मसीहा उस गोत्र से आया। And through him we can see that Jesus came in his generation.
और यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही उस क्रूस पे गया हमारे लिए। And according to God's will, Jesus went on the cross for us. क्रूस पे जाना मनुष्य की इच्छा नहीं थी। Going on the cross was not our will. ना ही एक हिसाब देखा जाए यहूदी लोग जो उसको क्रूस पे चढ़ाए उनकी इच्छा नहीं थी। And nor it was the will of the ones who crucified him. यह हम देखते हैं कि उनके अंदर एक कड़वाहट और नफरत हो गई थी, इस वजह से उनको क्रूस पे चढ़ाया। Yes, they had a bitterness and hatred for him, and that's why he was crucified. लेकिन उसमें हम परमेश्वर की इच्छा को देखते हैं। But there also we see God's will. गतसमनी के बगीचे में यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। In the garden of Gethsemane, Jesus prayed. उसने कहा कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे से दूर कर दे। Oh Father, if it's possible, let this cup turn over from me. वहाँ पे शैतान और दुष्टात्मा क्या थी कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चीजें न हो सके। And the demons and Satans were thinking that this should not happen to God through God's will. लेकिन पुत्र ने क्या प्रार्थना की, पिता ये मेरी मर्जी नहीं, मेरी इच्छा नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। But Jesus prayed that not according to my will, but your will be fulfilled. और यीशु मसीह परमेश्वर के संपूर्ण इच्छा में बने हुए थे। And Jesus was still in God's will. यदि यीशु मसीह परमेश्वर के संपूर्ण इच्छा में नहीं होते, If Jesus wasn't in God's full will, तो आज हमारा उद्धार नहीं होता। then we would have not received salvation. आप और हम मसीही जीवन को नहीं स्वीकार कर पाते। We would have not be able to receive God's salvation. हम अपने लाइफ में उन आशीषों को नहीं स्वीकार कर पाते We would have not received God's blessing, जो गॉड ने हमारे लिए रखा था, ऑलरेडी अनंत से रखा था। which God had kept for us before everlasting. लेकिन उस पुत्र ने परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा में ऑपरेट किया। But the Son operated that full will. इस वजह से हम उसका लाभ उठा पाए। And that's why we can take the goodness of that. क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा थी। Because it was God's will. लास्ट में Lastly, इफिसियों का 3:11 के अनुसार Ephesians 3:11, कि जो चुनाव है अनंत का मकसद के अनुसार है। the choosing is eternal plan. है ना, परमेश्वर जो चुनाव करता है परमेश्वर की इच्छा, और वो क्या है कि अनंत का एक मकसद है, इसलिए चीजें करता है गॉड। God does the choosing, it's because of the everlasting plan which he has. दूसरा तिमुथियुस का 1:9, 2 Timothy 1:9, वहाँ पे इस तरह से कहता है कि जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, हमारे कार्यों के अनुसार नहीं परंतु अपने ही उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार जो यीशु मसीह में है, अनंत काल से हम पर हुआ। Verse 9 says, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace which was given to us in Christ Jesus before the time began. है ना, तो इफिसियों का 3:11 में देखते हैं कि चुनाव है अनंत के मकसद के अनुसार, मकसद अनंत का मकसद है। Ephesians 3:11 says that the choosing is done for an everlasting plan. और दूसरा तिमुथी का 1:9 में हम देखते हैं And 2 Timothy 1:9 says कि परमेश्वर अपने ही उद्देश्य के अनुसार अनुग्रह के द्वारा वो चीजें किया। God does these things according to his will. है ना, यहाँ पे भी देखते कि हमारे कर्मों के आधार पे नहीं है। Here also we see that nothing is depending on our works. यह हमारी हालातों के आधार पे नहीं है। It is not depending on our circumstances. यह हमारे अच्छाई और बुराई के आधार पर नहीं है। It doesn't depend on our good or evil. लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य है उसमें। But there is God's purpose there. सो हर एक विश्वासी के लाइफ में एक परमेश्वर का उद्देश्य है। And in each and every believer's life there is God's teaching. और वो उद्देश्य अनंत का है। And that teaching is for everlasting. और वो उद्देश्य अनुग्रह के द्वारा है। And that teaching is through grace. और परमेश्वर चाहता कि हम उसमें बने रहें। And God wants us to be still in that. और जब हम उसमें बने होते हैं, And when we are still in that, तो परमेश्वर की इच्छा जो है हमारे प्रति, then the will which God has towards us, हम उस इच्छा को धीरे धीरे जानने लग जाते हैं। and slowly we understand God's will. हम उसके पुत्र के स्वरूप में धीरे धीरे बदलते जाते हैं। We change slowly in Jesus Christ. है ना, परमेश्वर की इच्छा ये भी है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में, उसके स्वरूप में बदलते जाएं।
It is God's will that we might change in God's likeness. है ना। इसलिए गॉड हमारे लाइफ में ऐसी परिस्थितियां लेकर आता है कई बार That's why God brings such circumstances in our life, कि वो अपने आप को हमारे लाइफ में देख सके। because then He can see Himself in our life. और जब हम उसमें बने होते हैं, And when we are still in that, हम उन हालातों से भागते नहीं, when we don't run away from those लेकिन हम circumstances, परमेश्वर के पास भागते हैं, when we run towards Christ, क्योंकि परमेश्वर को सारी चीजें पता है। because God knows all these things. और एक विश्वासी हालातों से नहीं बल्कि परमेश्वर के पास भागता है वो, And a believer doesn't run away from his circumstances but runs towards Christ. है ना। और जब ये इस तरह से विश्वासी जीने लगता है, And when a believer lives like this, सो परमेश्वर है ना कि हमारी ओर है, हमारे लिए है वो। and then God is for us and He is on our side. और परमेश्वर की इच्छा ये है हर एक विश्वासी के लिए, That God's will is for each and every believer. कि एक बहुत अद्भुत खास मकसद है, He has a special plan and a purpose for us. और वो मकसद इसलिए है कि विश्वासी के जीवन में परमेश्वर इनाम दे, And the purpose and the plan is that God may reward us. है ना। और ये इच्छा है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बदलते जाएं, And He wishes that we might change in His Son's likeness. है ना। जैसे हम वचन स्वीकारते हैं, हम उसके पुत्र के स्वरूप में बदलते जाते हैं। As we receive the word, we change in His likeness. जैसे हम संगति में होते हैं, As we are in फेलोशिप में होते हैं, as we are in fellowship, तो हम उसके पुत्र के स्वरूप में धीरे धीरे बदलते जाते हैं। we change in His Son's likeness. सो परमेश्वर की इच्छा यही है हम सब मसीह के जीवन में, And this is what God wishes in all our lives. इसीलिए उसने हमारा चुनाव किया। And this is why He chose us. आमीन। Amen. आइए प्रार्थना करते हैं। Let's pray. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, Gracious Heavenly Father, we pray. आपको महिमा प्रशंसा देते हैं राजा। We glorify you, King. हम प्रार्थना करते खासकर प्रभु जो लोग आज ये वचन सुन रहे, प्रभु हर किसी को आशीषित कीजिए पिता। We specially pray for each and everyone who has heard these things, and please bless them, Lord. लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में अद्भुत काम कीजिए प्रभु। Lord, do amazing things in their lives, Lord. प्रभु हम सबके लाइफ में प्रभु मजबूती से प्रभु काम कीजिए प्रभु। Work in our lives strongly, Lord. आपके वचन हमारे जीवन में प्रभु अधिकाई से बसने पाए प्रभु। Let your words be still in our lives, Lord. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च में जो लोग बीमार है प्रभु, आप उन्हें पूरी तरह से चंगाई दीजिए। We pray for the ones who are sick in our church, Lord. Please heal them. हम प्रार्थना करते हैं कि सुकेश भाई के लिए प्रभु पूरी तरह से उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। We pray for brother Sukesh, Lord. Please heal him, Lord. जबकि वो गुजरात में है प्रभु, आप उनके साथ रहना परमेश्वर। As he is in Gujarat, Lord, be with him, Lord. पूरी तरह से चंगाई देना परमेश्वर उन्हें। Heal him completely, Lord. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। We thank you, God. विजय जी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, We pray for Vijay uncle, Lord. उन्हें भी पूरी तरह से चंगाई दीजिए पिता, Heal him completely, Lord. क्योंकि आपका एक मकसद है उनके लाइफ में परमेश्वर। Because you are having a special purpose for him. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अग्रवाल अंकल के लिए प्रभु यीशु मसीह। We pray for Agarwal uncle, Lord. प्रभु उन्हें भी पूरी तरह से चंगाई दीजिए प्रभु। Heal him completely, Lord. प्रभु आपके महिमा के लिए चंगाई होने पाए परमेश्वर। Let that healing bring glory to you. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। We thank you, Lord. यदि आप ये संदेश पहली बार सुन रहे हैं या यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, If you are hearing this message for the first time or are hearing about Jesus Christ for the first time, तो यीशु मसीह आपके लिए आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आए थे। so for you Jesus came 2000 years ago, और उन्होंने, ये पवित्र शास्त्र कहता है कि उन्होंने आपके पाप के लिए क्रूस पे बलिदान हुए। and the Bible says that he was crucified for your sin. हम सबके पापों के लिए बलिदान हुए He was sacrificed for all our sins. और उनको कब्र में दफनाया गया। And he was buried in a tomb.
और वो तीसरे दिन जी उठे। and he was resurrected on third day, आज वो स्वर्ग में हैं। and he is in यदि heaven. आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, And if you have not received Jesus, सो आपके लिए अद्भुत समय है ये। and this is an amazing opportunity for you, बाइबल कहता है कि यदि आप उसके नाम में विश्वास करते हैं and Bible says that if you believe in his name, तो यीशु मसीह आपके सारे पापों से क्षमा देता है then Jesus forgives all your sins, और आपको अनंत जीवन देने का एक वादा करता है, and then he promises you to give an eternal life. और आपके जीवन के प्रति परमेश्वर के एक खास मकसद भी है। And God is having a special purpose towards your life, उस मकसद का हिस्सा आप बन सकते हैं and you can become a participant for God's will, और आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। and you can receive Christ in your life. तो यदि ये स्वीकार करना चाहते हैं तो मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। If you want to receive, then you can repeat after me. प्रभु यीशु, Lord Jesus, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ। I believe in your name. प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ। Lord Jesus, I ask forgiveness for all my sins. प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ। Lord, I accept you as my personal savior. धन्यवाद करते हैं। Thank you. यदि आपने पहली बार ये प्रार्थना की है, If you've prayed this prayer for the first time, ये बाइबल आपको वचन देता है कि यीशु मसीह ने आपके सारे पाप क्षमा कर दिए। this Bible gives you a promise that Jesus Christ have cleansed you from all sins. आप अनंत के मकसद के लिए चुन लिए गए हैं। You are being chosen for an eternal purpose. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। Thank you, Lord. आपकी महिमा करते हैं राजाओं के राजा। We glorify you, King of Kings. ब्लेस कीजिए प्रभु हर किसी को प्रभु, Bless each and every one, Lord. यीशु मसीह के नाम से In Jesus' name. आमीन। Amen. Jesus, we believe that you are a healer of our lives. We thank you for ministering us. We worship you and we believe that you're going to talk to us. We believe that you are a healer. We trust in you in every moment in our lives. We thank you so much for your presence. We thank you. Nothing is impossible for you, Lord. Thank you so much. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe more than enough for me. Jesus, you're all I need. Yes, Lord, you hold my every moment. Hold my every moment. You calm my raging sea. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Yes, Lord, you are all we need. I believe you're my portion. I believe more than enough for me. Jesus, you're all I need. I believe you're my healer. I believe
believe more than enough for me. Jesus, you're all I need. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. Yes, Lord. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Yes, Lord Jesus. You are a healer, Lord Jesus. You are all that we need, Lord Jesus. You are a portion, Lord Jesus. Lord Jesus, help us, Lord Jesus, to follow you, Lord Jesus, every moment of our lives and to love you, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus, we don't want to limit ourselves, Lord Jesus, just to be as the hearers, but we want to be the doers of the word, Lord Jesus. Help us to be in that way. Thank you, Jesus. We submit in everything into your name, Lord Jesus. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.